Hello student, welcome to the exam idea classes. Myself Humaira Khan. As you know very well, as we have done our chapter, basically we were discussing about the human health and disease from the biology section. So the remaining part today we will discuss, that is the AIDS. As we know about the AIDS, AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. This is caused by a virus that belongs to a family, that is the retrovirus, and the name of the virus is HIV, human immunodeficiency virus. So now we will discuss about the detail of this chapter. So what is the detail of this chapter? This is AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. AIDS is acquired immunodeficiency syndrome caused by human immunodeficiency virus and interferes with the body's ability to fight infection. Body's ability to find infection means कि यहाँ पर इम्यूनोडेफिशिएंसी, जैसे यहाँ पर टर्म गिवन है इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब है कि ये जो वायरस है ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो ये हमारी इम्यूनिटी को डेफिशिएंट कर देगा, हमारी इम्यूनिटी को लो कर देगा. सो एंड दिस वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड ब्लड, semen or the vaginal fluid. Basically this virus will be transmitted with the help of the body fluids, the fluids that we discharge or the fluid that flows inside our body. AIDS was first reported in 1981 and in approximately the last 25 years it has spread all over the world, killing more than 25 million persons. Flu-like symptoms appear with a few weeks or infections such as fever. So what are the symptoms of this AIDS? The first of all, the fever, fatigue and sore throat. Fever, as we know, जब हमारा temperature rise कर जाता है, that is the fever. Fatigue का मतलब है जब हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है. And the sore throat का मतलब है जब हमारे गले में बहुत ज़्यादा खराश होती है और बहुत ज़्यादा जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो बेसिकली उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है. सो दैट इज़ द सोर थ्रोट एंड दिस डिजीज बिकम्स एसिम्प्टोमेटिक अंटिल इट प्रोग्रेसेस इनटू एड्स. अनसिम्प्टोमेटिक का मतलब है जब ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो देन एंड देयर इसका जो भी सिम्टम होगा वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, एसिम्प्टोमेटिक. बट ग्रेजुअली धीरे धीरे जब ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करता है तो ये जाके बहुत टाइम के बाद में सिम्टम्स को शो करेगा. से एंड व्हाट विल बी द सिम्टम्स? द वेट लॉस, फीवर और नाइट स्वेट्स, रात को बहुत ज़्यादा पसीना आना, फटीग एंड रिकरेंट इन्फेक्शंस आर द सिम्टम्स ऑफ द एड्स. टिल नाउ नो क्योर इज अवेलेबल फॉर एड्स. एड्स की कोई ऐसा क्योर नहीं है, बट prevention is better than cure. So what kind of prevention we can take for the AIDS, such the person who acquires this AIDS virus in his body? Now we'll discuss. Now we'll discuss about the causative agents of the AIDS. What are the causative agents of the AIDS? So the causative agents are the AIDS are, it is caused by human immunodeficiency virus and it's a member of the group of viruses called rhinoviruses. This is the MCQ part from this section. And the genome means the genetic material. कि what is the genetic material of the virus? As we know कि genetic material in human beings is DNA, but in the virus the genetic material is RNA, that is ribonucleic acid, which is enclosed in an envelope, जो एक envelope के अंदर enclosed होगा. And they also consist of the reverse transcriptase genes. Reverse transcriptase genes का मतलब है कि जैसे आपका एक सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की व्हाट इज दैट. सो वी हैव डीएनए.
डीएनए से आपका बनता है बॉडी के अंदर आरएनए, एंड आरएनए से आपका फॉर्मेशन होगा प्रोटीन का. सो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, सो दिस process is known as transcription, and here an enzyme, DNA dependent DNA polymerase, will work when this RNA will form your DNA. So this process is known as reverse transcription. This is known as reverse transcription. That means RNA से DNA का formation होना with the help of an enzyme, reverse transcriptase. So this is the central dogma of molecular biology. Now the transmission of HIV infection, how this HIV infection will be transmitted from one person to another person. So first, that is the sexual contact with an infected person, that is an individual who have multiple sexual partners. The second one is by the transfusion of the contaminated blood and blood product. Suppose a person is transmitted by this HIV and he or she has transfused the blood to the other person. कि किसी को अगर ज़रूरत हुई और ब्लड देना है, तो अब ये नहीं पता, इन केस अगर ये नहीं पता है कि उसके ब्लड के अंदर HIV वायरस प्रेजेंट है और वो आपने किसी हेल्दी पर्सन को वो ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज कराया, so the healthy person will become the AIDS person. So individuals who require repeated blood transfusion, repeated blood transfusion का मतलब है कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जिसमें बार बार पर्सन्स को ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है, ब्लड लेना पड़ता है, लाइक इन केस ऑफ द सर्टेन कैंसर्स, एनीमिया एंड थैलासीमिया, जिसमें आपको कंटिन्यूसली ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराना होता है. एंड द थर्ड वन इज द बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स. इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स कौन होते हैं? जो आपके ड्रग एडिक्ट्स होते हैं. एक निडल से ही एक ड्रग किसी एक पर्सन ने ली, उसी निडल से ही सेम ड्रग जो है वो दूसरे पर्सन ने ले ली, तो उससे जो होता है आपका, सो ये शेयरिंग क्या है आपका? शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स एज इन केस ऑफ द इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स. ड्रग एडिक्ट्स कौन होते हैं आपके ड्रग अब्यूजर्स? ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, जो कंटिन्यूसली अपनी वेन्स के अंदर ड्रग्स को लेते हैं. नेक्स्ट, द फोर्थ वन, from infected mother to her child through the placenta. As we know very well, from the placenta most of the things or several things can transport from mother to her fetus and from fetus to the mother. तो अब क्या होगा कि जब प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से जो है क्या होगा, चिल्ड्रन born to an HIV infected mother, कि अगर मदर HIV इन्फेक्टेड है तो उसके चाइल्ड को भी HIV होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज जो प्लेसेंटा है उससे आपका वायरस जो है वो क्रॉस कर जाता है. HIV डज नॉट स्प्रेड थ्रू mere टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट. It's primarily spread through sexual contact but also through infected blood from sharing the intravenous needles and so on. This incubation period may vary from a few months to many years, usually 5 to 10 years. Incubation period का मतलब है कि जैसे ही कोई वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ज़रूरी नहीं है कि 1 मंथ में, 2 मंथ में, 5 मंथ्स में या 1 ईयर में आपको सिम्टम्स नज़र आ जाएंगे. इट मे बी पॉसिबल, बट जो क्या है यहाँ पर, फ्यू मंथ से आपके जो फ्यू मंथ से आपका फ्यू मंथ से आपके जो है 5 to 10 ईयर्स भी हो सकते हैं इन्फेक्शन को आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने में. Now we'll discuss how the HIV affects the body. HIV body को किस तरह से affect करती है? When the virus enters the person's body, then it will infect the macrophages. Macrophages are the cells which are present in our body. तो सबसे पहले जब HIV बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारे macrophages को
सो हमारे मैक्रोफेजेस पर एंटर करेगा. Then with the help of reverse transcriptase enzyme, so the viral genome RNA replicates and forms viral DNA. Now we'll discuss by making a flow chart of this कि किस तरह से जो है ये हमारा, ठीक है, we'll discuss. Suppose here is an animal body. This is the animal body. This is the plasma membrane of this animal body, and this is the nucleus, and this is the genome of the animal body. Now what will happen? Here is your HIV virus. यहाँ पर आपका प्रेजेंट है HIV वायरस, और अब ये इस HIV वायरस का जो जीनोम है दैट इज द RNA. जब आपका वायरस किसी भी बॉडी पर, किसी एनिमल बॉडी पर अफेक्ट करेगा, सो हेयर दिस RNA, बेसिकली दिस इज योर वायरल RNA. ये आपका वायरल RNA. Now only the genetic material will enter from one part of the one body to the another body. तो यहाँ पर एंटर कर जाएगा जब कोई इन्फेक्शन होगा. दिस इज योर वायरल RNA. Now this viral RNA have the capability to make the DNA. It has the capability to make the DNA. तो viral DNA with the help of enzyme reverse transcriptase, it will make viral DNA. Viral DNA बनाया. Now this viral DNA will incorporated into the nucleus of the animal cell. Animal cell के nucleus में ये viral DNA जो है वो enter करेगा and it will make its exact copy. अभी अब यहाँ पर because DNA have the ability, DNA के अंदर ability होती है to make its exact copy, अपने जैसी कॉपी बनाने की. तो it will make, so here will be the formation of viral DNA. So there will be the copies of the viral DNA, और viral DNA से यहाँ पर जो copies बनेंगी वो RNA की बनेंगी. So here will be the formation of the RNA. As we know कि जो हमारा DNA होता है, DNA के ऊपर हमारे special segments present होते हैं, that is your genes. And every genes in our body have the ability to show itself, but how? By making the protein बनाकर, वो protein बनाकर जो है अपने आप को show करते हैं. So now these are the viral RNAs. So this viral RNA will come out into the cytoplasm. So this is the viral RNA, this is viral RNA, and this is viral RNA, and this is the, now these are the viral RNA that is ready to infect the other organism, और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को अटैक करने के लिए यहाँ पर रेडी है. सो बाय दिस, इस तरह से जो है आपका इस तरह से आपका जो HIV वायरस होता है, इट गेट्स मल्टीप्लाई इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये जाकर इस तरह से जो है वो वर्क करेगा. बेसिकली जो आपका वायरस है दैट इज योर रेट्रोवायरस, जिसको हम HIV वायरस जो है हमारा, तो ये क्या है हमारी बॉडी के कौन से पार्ट्स में अफेक्ट कर रहा है. सो विल डिस्कस बाय रीडिंग दिस. तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि जो हमारा वायरस जब एंटर करता है किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर, सो इट विल इन्फेक्ट द मैक्रोफेजेस. ये आपके मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करेगा. सो देन विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, द वायरल जीनोम RNA जेनेटिक मटेरियल replicates and forms viral
RNA, रेप्लिकेट करेगा. रेप्लिकेट्स मीन्स इट विल मेक द DNA का फॉर्मेशन करेगा. दिस वायरल DNA विल गो इनटू द होस्ट सेल and then these infected cells which produce virus particles. Thus macrophages will produce viruses. Simultaneously, the HIV virus will enter the helper T cells. Helper T cells हो गई जो हमारे एंटीबॉडीज को बनाने में हेल्प करती हैं. And they produce the viral progeny in the blood which attack other हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स. जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है यहाँ, एक तो मैक्रोफेजेस को आप बोलते हो HIV फैक्ट्री. मैक्रोफेजेस आर सेड टू बी द HIV फैक्ट्री. अब हमने ये वाली बात की है कि जो हमारा वायरस है वो हमारे इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट कर देता है किसी भी पर्सन को इम्यूनिटी की वजह से. तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि ये आपके हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर अटैक करेगा. जब हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स आपके अटैक के ऊपर जब ये अटैक करेगा तो हेल्पर टी सेल्स जो होती हैं आपकी, दैट इज टी लिम्फोसाइट्स, ये आपके नंबर में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. जब ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है तो हमारी इम्यूनिटी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है. सो दिस साइकिल कंटिन्यू अंटिल द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स डिक्रीजेज इन द इन्फेक्टेड पर्सन. This leads to the person suffering from several diseases that include infections and diseases such as those caused by bacteria, especially mycobacterium, viruses, fungi, even parasites like toxoplasma. That means जो इस तरह के भी इन्फेक्शन जो नॉर्मली किसी को होते भी नहीं है, बट वो जिस पर्सन को HIV होता है या एड्स होता है, लाइक आप HIV कह लीजिए या एड्स कह लीजिए, वो होता है तो वहाँ पर बहुत माइन्यूट सभी इन्फेक्शन जो होता है वो उस पर्सन को हो जाता है. क्यों हो रहा है? बिकॉज वो जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाता है. दैट इज़ इम्यूनो डेफिशिएंट. एंड इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गई है तो इसका मतलब क्यों हो रहा है, क्या है? क्योंकि वहाँ पर उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है. हाउ कैन यू डिटेक्ट द वायरस? आप इस वायरस को किस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हो? व्हाट इज द डिटेक्शन? सो देयर इज एन डिटेक्शन यू कैन डन बाय अ टेस्ट बेसिकली दैट इज नोन एज द ELISA, enzyme linked immunosorbent assay, and it is a biochemical test that help in detecting the presence of an antibody और एंटीजन. ये डिपेंड करता है आपका प्रिंसिपल कौन सा है यहाँ पर, एंटीबॉडी और एंटीजन in a sample. So to confirm the result of the ELISA test, Western blotting test is also done. यहाँ पर आप Western blotting test कर सकते हो. Now what are the treatments? क्या treatments हैं आपके कैंसर के? So the treatment is done by using antiretroviral drug. That means यहाँ आप क्या यूज करेंगे? Only the antiretroviral drug you will take, that which increases the lifespan of a person but it cannot prevent death. Obviously death को कोई prevent नहीं कर सकता है, लेकिन यह prolonged life हो जाती हैं. What are the preventions and control methods? Making blood transfusion. आप control क्या है कि अगर आपको blood transfusion किसी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपके अंदर होना है तो आपने वहाँ पर क्या करना है, आपने ये श्योर करना है कि जिस भी पर्सन से आप ब्लड ले रहे हो इट शुड बी वायरस फ्री. टू एंश्योर, आपको एंश्योर करना है कि अगर आप कोई भी किसी भी तरह का आप सैंपल कर रहे हो तो उस सैंपल में, दैट मीन्स अगर आप किसी के साथ में कोई निडल शेयर कर रहे हो, कुछ भी आप इस तरह से, तो वहाँ पर आपको ये चेक करना है कि आपकी बॉडी में किसी भी पर्सन का फ्लूइड ना जाए. एंड कंट्रोलिंग द ड्रग एब्यूज़, और वहाँ आपने ड्रग एब्यूज़ को कंट्रोल भी करना होता है. So as we know very well about the AIDS, I'm repeating one or two things कि AIDS जो है आपका, ये आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपका कि जो आपका DNA है, लाइक दिस इज योर DNA,
डीएनए से आपका बनेगा आरएनए, आरएनए से बनता है आपका प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए, एज वी नो कि डीएनए से डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को आप रेप्लिकेशन बोल रहे हो। तो जब इस प्रोसेस को आप रेप्लिकेशन बोल रहे हो, बिकॉज डीएनए विल मेक इट्स एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डीएनए, डीएनए से आरएनए बनेगा, दिस इज योर ट्रांसक्रिप्शन। ये आपका ट्रांसक्रिप्शन है। तो अब डीएनए के अंदर एबिलिटी है टू मेक इट्स एग्जैक्ट कॉपी, बट आरएनए के अंदर एग्जैक्ट कॉपी बनाने की एबिलिटी नहीं है। सो इट विल फर्स्ट मेक इट्स आरएनए बाय द एंजाइम reverse transcriptase. By the enzyme reverse transcriptase, it will make the viral RNAs. ये आपके बहुत सारे वायरल RNAs को बनाएगा और यही वायरल RNAs आपके वायरल DNAs को बनाएगा. It will make the viral DNAs, क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी होती है RNA के अंदर टू मेक द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डीएनए, मतलब वो डीएनए को बना सकता है। तो वायरस जो एंटर कर गया बॉडी के अंदर, तो किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहा है? बाय दिस द वायरस विल मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद में इट विल एंटर इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट बॉडी, और वहाँ से निकलकर साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये जो आपका डीएनए टू डीएनए का जो प्रोसेस है, इट टेक्स प्लेस इनटू द न्यूक्लियस। आरएनए से डीएनए जो बनेगा आपका, that also takes place into the nucleus, और जब आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होने के लिए। तो जो डीएनए के ऊपर आपके स्पेशल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज जीन्स। तो जीन्स हमेशा अपने आप को शो करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के बाद। So this is all about our HIV/AIDS. Thank you.